Okay. Hello Nilaksh. Hi, how are you doing, man? Hi Sajan, what's up? It's been a long time, huh? It's been quite a long. थोड़ा busy था मैं अभी. तू भी बहुत busy था. So हाँ यार. yeah. So first, giving a quick overview. What is this podcast? Why we are doing this? Why is it in my channel? Basic reason is me and Nilaksh were talking. हम बात कर रहे थे and we came to a point wherein we started discussing the same thing on a specific topic called high value man. Right? Being a high value man. आप एक man हो. If you are a guy, there are a lot of things that the society expects you to have. It can be your looks, it can be your being mentally strong, physically strong, growing in your career, being financially independent as early as in Why your you should do in your that? age, and why you should do that, right? So we thought we'll do one thing. हर हफ्ते हम एक पॉडकास्ट लाएंगे and we will cover one or two qualities of being a high value man, and our end goal is to create a community of people, community of boys or men or guys who want to be a high value man. Like there are a lot of people who gets bullied. स्कूल में बहुत सारे बंदों का मजाक उड़ता है. Right, lot of right. people go a lot of Even I mental am one stress. of those. हाँ yeah. So a lot of Yeah, even stress. I am one of So there are a lot of things because of which a guy can feel underconfident, and the main focus is to making them be more confident and bold enough to face the world in which we are living right now, right? So Nilaksh, coming back to you, first question to start off the discussion कि हम बात कर रहे थे तो you basically told me about the high value man quality. So how exactly you came to this specific term, I could say, that high value man? See, basically myself Nilaksh Deshmukh, and I'm a businessman by profession, and right now I'm working in the field of agriculture and pursuing inland aquaculture, fish farming, small business. So what I believe is कि basically मैंने ये समझा कि there is a difference between a common man and a high value man. अब वो क्यों ऐसा है वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं ये कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला कि आई बिलोंग्स टू अ हाई वैल्यू मैन, राइट? क्योंकि ऐसे कुछ क्वालिटीज़ होते हैं जो आपको 10 लोगों से अलग बनाते हैं, और वो चीज़ आप एडप्ट करके लाइफ लॉन्ग आप उस चीज़ को करते जाओगे तो फिर आप दैट विल गोना लीड टू यू आर डिफरेंट पर्सन. यू कैन से सक्सेसफुल पर्सन. एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या रिच होना डिपेंड नहीं करता. सक्सेसफुल होने के बाद पैसा अपने आप आता है. बिहेवियर, डाउन टू अर्थ होना. तो आई टेल यू माई स्टोरी. या ऑब्वियसली. सो बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा क्रिएटिव करते हैं. मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा. सजन, तो मुझे बताना कि व्हाट कैटेगरी आई यूज्ड टू बिलोंग. मुझे हाई वैल्यू मैन में आना चाहिए या फिर मुझे कॉमन मैन में आना चाहिए? Okay. Same thing I'll also do. I'll tell my story and you can tell whether I belong to a common man or a high value man. What we're gonna do. आप लोग भी ये कमेंट कर सकते हो, what do you feel? Now again, मेरे को नीलक्ष की कुछ qualities बहुत अच्छी लगेगी, that I would say. But if you have some good qualities about him, drop down in the comments. Maybe we'll go through about your opinions as well. Right? So नीलक्ष, you can start off first. Before you start off, as we said, right? अभी नीलक्ष ने एक statement बोला कि we have a lot of qualities, but हमको पता नहीं चलता कि वो कौन सी qualities है जो मेरे को अच्छा बनाती है as a man. एंड Right. वो हम खोज नहीं पाते आज की जनरेशन में स्पेसिफिकली. वो करियर भी ले लोगे तो क्या करना है मेरे को नहीं पता. सो आवर बेसिक गोल इज टू अंडरस्टैंड एंड मेक यू रियलाइज व्हाट आर योर गुड क्वालिटीज दैट मेक्स यू अ गुड मैन और अ जेंटलमैन और अ हाई वैल्यू मैन. So that is what you will be trying to figure out through this entire journey of different podcasts, right? So Nilaksh, you let's can start start with off with your story. मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा. Sure. Basically at the age of 18 जब मैं कॉलेज, basically I'm a college dropout, you know. तो मैं जब फर्स्ट ईयर पे था कॉलेज पे तो आई वाज डूइंग बी फार्मा. तो मुझे लगता था कि यार आई वांट टू डू समथिंग एल्स, कि यार ये बहुत बोरिंग है. मैं जब अपने फ्रेंड्स को देखता था तो दे यूजुअली चिल, वो क्लासरूम में प्रैक्टिकल रूम में लड़कियों से बात कर रहे हैं कि दे आर लाइक चिलिंग आउट. तो जब फर्स्ट ईयर गया तो आई वाज आल्सो लाइक क्रिएटिव. तो मुझे ये था कि यार कुछ तो नया करना है. तो फिर वहाँ पे फ्रेशर्स होता है, तो उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया. आई बिकम मिस्टर फ्रेशर. उसके बाद फिर मिस्टर कलिंगा बना, फैशन शो था एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत ग्लैमर देखा. फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये रियलिटी नहीं है. अगर मैं बी फार्मा कर भी लूँगा तो आगे चल के मुझे जॉब सिक्योरिटी कितनी मिलने वाली है, मेरा ये क्वेश्चन था. मैंने उसके बाद जो मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की, मैंने अपना स्टार्टअप किया, वो सब डिफरेंट थे. मुझे ये मानना, मेरा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लाइफ में, आप चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, आप जो भी ग्रेजुएशन करोगे एट लास्ट आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए करो. दैट्स इट. और कोई मोटिव नहीं है यार डिग्री का. तो मेरा ये मानना था यार कि अगर चलो मुझे अगर बिजनेस भी करना है या फिर जॉब भी करना है तो पहले मुझे उतना दुनिया को समझना पड़ेगा. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो इंजीनियरिंग करते हैं या फिर एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद वो रियल वर्ल्ड को फेस नहीं करते.
बहुत बुली होते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग यार। तब आपके पापा नहीं होंगे आपको पुलिस केस से बचाने के लिए, तब आप वो बच्चे नहीं हो, नाबालिग नहीं हो कि आपके ऊपर केस नहीं होगा या फिर आप कंट्रोवर्सी में नहीं फंसोगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू स्ट्रगल, बट ये कोई कॉलेज में नहीं सिखाते। भाई मैं ये बोलता हूँ कि आप डिग्री तो दे रहे हो, साथ साथ लाइफ लेसन भी तो, रियलिटी चेक भी तो दो सामने वाले को। आज के डेट में तो ये बोलेगा ना सचिन कि सिंपल लाइफस्टाइल जैसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को एकदम सिंपल लाइफ जीनी है, एक मकान, एक घर, एक कार, 2 बच्चे। ग्रेजुएशन का कॉस्ट उसके पापा ने दिया है ना। That's very true. लगेगा यार। That's very true. तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो घर से पैसे लेना ऐसे कोई शर्म नहीं है यार, बिल्कुल नहीं। बट what आप क्या दे सकते हो ये मैटर। मैं ये बिलीव करता हूँ घर से पैसे लो बट टू अ सर्टेन एज। व्हाट आई बिलीव इज सी व्हाट भाई, मैं यूएस का एक कल्चर बहुत मेरे को अच्छा लगता है कि एज सुन एज द किड्स ग्रो 13-14 दे स्टार्ट डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स, होटल्स में जाके वेटर्स का काम करते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में मैं क्या कोई भी अगर बंदा अगर कोई चाय दुकान में जाके काम कर रहा है या कोई बेकरी में कैशियर बन के बैठा है, गॉसिप्स चालू हो जाती है, भाई इसको देखा क्या, नीलाक्ष कल बेकरी में बैठा हुआ था, कैशियर का काम कर रहा है। भाई क्या यार इंजीनियरिंग करके कैशियर का काम करवाना है यार। मेरे को एक चीज बता, अगर मेरे को अगर कोई 100 रुपए का काम बोलेगा ना, मैं उसको 1000 रुपए का काम, क्योंकि भाई मेरे से अच्छा वो काम कोई ना कर पाए। ट्रू भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर मैं कुकिंग वीडियोस बनाता हूँ, मैं खाना बनाना जानता हूँ, ताकि मैं तुझे बताता हूँ ना मैं ये सारी चीज़ें क्यों करता हूँ। मुझे खाना बनाना आता है, मैंने जब ग्रेजुएशन छोड़ा था तो मेरे पास बहुत सारा समय था, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने लकड़ियों की समझ ली, जो प्रॉपर वुड फर्नीचर होता है, कौन सी टाइप की वुड्स होती हैं, चाहे वो पाइन वुड हो, चाहे वो टिक वुड हो, चाहे वो खमार, उसके बाद फिर चाहे वो बीरहा की लकड़ी हो, बीजा हो, बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता भाई। उसके बाद फिर जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हो तो फिर आपको इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, क्या मटेरियल यूज होता है, कहाँ से ईटा आता है, रॉड क्या लगता है। उसके बाद फिर जब पेंट हो गया तो आई नो हाउ टू पेंट अ वॉल, आई डू माई इंटीरियर वर्क। तो मैं खुद से दीवार वगैरह पेंट करना सीखा। मुझे पता चला कि कितने टाइप की कैटेगरीज होती है, क्या क्या ब्रांड्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों का समझ मैंने इसलिए लिया। मैंने ग्राइंडर चलाया लकड़ियों का, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने की यार। अब वो जो मुझे अच्छा लगा मैंने सब चीज़ ट्राई किया, सब एक्सपीरियंस किया। इवन मैंने जब फिश फार्म स्टार्ट किया था तो मैं मछुआरों की तरह जाल भी चलाया। तो इफ़ यू ग्रो ना, आगे चल के जब आप घर बनाओगे तो आपको हर एक चीज़ पता होगा कि आपको क्या करना है। देन ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना सीजन, उस पर लोग ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है कि यार जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ मैं हायर कर लेता हूँ। तो आप हायर भी करोगे तो भी आपको पैसे चाहिए, बनाओगे तो भी पैसे चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने पैसे बचा सकते हो और साथ साथ आप ग्रो होकर इंटरेस्टिंग बन सकते हो। कल की डेट में मुझे पेंट कराना है तो मैं बताऊंगा ना कैसे कलर सेलेक्ट करते हैं, वो मुझे आता है। कौन सा पेंट मुझे लगाना है ये मुझे आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होगा, इंटीरियर होगा, तो कम से कम मैं भी अपना पार्ट दे सकता हूँ। बेसिकली तेरे को सारी चीज का आइडिया है। अगर मेरा ये है कि आई डोंट वांट टू बी ब्लैंक इन ईच एंड एवरी सेक्टर, कि मुझे कुछ तो पता हो। तेरा वही है, मतलब बेसिकली कल के दिन अगर कोई भी तेरे सामने आ रहा है 200 की चीज 500 में बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मुंह में बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ये चीजें हैं। हाँ तो सीधे साफ। अब मेरा ये मानना है कि पैसा कमाना ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। अगर मेरे को कल के दिन पे अगर मेरा बिजनेस छीन गया ना, मेरे को मेरे घर वाले भी निकालते हैं, तो मुझे इतना सारा चीज़ आता है कि मैं अपना 2 वक्त की रोटी कमा सकता हूँ। चाहे वो मैं पेंट करके कमाऊँ, चाहे मैं मिस्त्री वर्क करके कमाऊँ, चाहे मैं लकड़ी का काम। बिकॉज ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ द स्किल्स जो तूने सीखी है। राइट, एग्जैक्टली। ये सिर्फ पैसे नहीं बचाते, ये आपको तैयार करते हैं कि आप अपने क्राइसिस में भी आप कुछ ना कुछ करने की काबिलियत रखें। ट्रू, ये मेरा मानना है। कल किसी ने नहीं देखा यार, अगर कोविड में मेरा बिजनेस चला गया या ठप हो गया तो मेरे अंदर और भी काबिलियत है कि मैं कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। सिर्फ डिग्री की जरूरत नहीं है भाई पैसे कमाने की। डिग्री, तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा लीडरशिप क्वालिटी मैटर करती है। डिग्री बहुत ओवररेटेड हो गया आजकल, लाइक इट्स जस्ट अ पेपर। एग्जैक्टली यार, लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जीरो पैनी लेकर। मैं घर से पैसे नहीं लिया था यार, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे करके सब हो जाता है यार। आपको लोगों को क्या बहुत बड़ा मिलता है कि यार एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या फिर एक बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत सारा लमसम पैसा। तो तू इंजीनियरिंग का अगर तू कॉस्ट जोड़ेगा तो 9-10 लाख रुपए वहां खर्चा करने से यहाँ लगा दे। बात तो एक है, बट तेरे अंदर वो गट पावर, कॉन्फिडेंस,
वो रिस्क लेने के लिए तुमको वो गट्स चाहिए रहता है कि भाई ठीक है भाई पैसा डूब गया तो डूब गया, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन है मुझे बताना। मैंने 10 लाख की डिग्री की, मैंने 40,000 रुपये में आप कमा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो पैसे से पैसा कमा रहा हूँ ना, पैसा दे के तो पैसा कमा रहा हूँ, पैसा तो अभी भी कमा सकता हूँ यार, मैं पैसे से और पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं उतने में क्यों सेटिस्फाई हो जाऊँ जब मैं पैसे से पैसा कमाने के साथ साथ अपना फॉर्चून भी क्रिएट कर सकता हूँ। ट्रू। ओके, सो बेस्ड ऑन अभी तक तूने मेरे को जो बात बताई, बेस्ड ऑन दैट आई विल पुट यू इन अ हाई वैल्यू मैन कैटेगरी और हाई क्वालिटी मैन कैटेगरी। कारण बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, टेकिंग द रिस्क एंड गोइंग आउट ऑफ द कॉलेज, राइट, क्योंकि एज यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल, अब कॉमन मैन क्या होता है ब्रो, कॉलेज करेगा, 25-30 हज़ार की नौकरी करेगा, 3-4 साल प्रमोशन का वेट करेगा, 50-60 कमाने लगेगा, शादी कर लेगा, EMIs लेगा, होम लोन, व्हीकल लोन, ये लोन वो लोन, बंद जाएगा, मैट्रिक्स बंद जाएगा, बच्चे होंगे, देन ही विल स्ट्रगल टू गिव देम प्रॉपर एजुकेशन। दैट्स लाइक अ कॉमन मैन्स लाइफ, राइट। ये सारी चीजें किसी के लिए मजबूरी भी होती है सचिन। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हर कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकता ब्रो। व्हाट, ये तो बिलियनियर्स कम है क्या, इसीलिए तो सक्सेसफुल लोग कम है। व्हाट आई फील इज कर सब सकते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रगल है वो सब गो थ्रू नहीं कर पाते। दैट इज व्हाट आई फील। वो हर किसी के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो जीरो से स्टार्ट कर सके, राइट। फाइनेंशियली स्ट्रांग वो नहीं है। अब तू बता, जिसके पास करोड़ों पड़े हैं। फाइनेंशियल स्ट्रांग वो है जिसके दिमाग में ये माइंडसेट है कि आज मुझसे अगर सब छीन गया ना, तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं फिर से खड़े करने की हिम्मत। हाँ, एग्जैक्टली। अब तो अपने एज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने लाखों उड़ाते हैं, राइट। इट कैन बी देयर पेरेंट्स मनी, इट कैन बी एनीथिंग। अब तो उनको बोलेगा कि भाई कल से तेरे पास कुछ नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग ऑन योर ओन। ही कांट डू दैट, ही वोंट बी एबल। उतना भी नहीं सीजन, उतना भी नहीं। तू उनकी कार छीन ले, उनको बोल कि भाई तू कल से साइकिल ले, स्टेटस गिर जाएगा भाई, वो शर्म से मर जाएगा, वो कॉलेज छोड़ देगा। बट व्हाट आई फील इज, इफ यू आर अ हाई वैल्यू मैन, दैट इज वन क्वालिटी कि यू शुडंट केयर व्हाट द वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट यू मैन। आज गाड़ी है, कल साइकिल है, कोई दिक्कत नहीं। True, the person who is there with you in your struggles, I would say, is the best person you can trust, right? Coming back to the point, first thing जैसा मैं बोल रहा था कि going out of the box, college छोड़ के जो रिस्क लिया तू अपने स्टार्टअप के लिए, that is one thing. Second thing, cooking, doing things apart from your normal routine work, that is very essential to live. आज मैंने बहुत सारे लोगों को, my woman यार, if she is helping me out, if same she is here, taking care of my child, if she is working also, if she is earning, whatever she is doing for me, I also have the things to do ना। अगर मुझे कुकिंग, चलो मैं ये नहीं बोलता हर किसी लड़के को कि आप खाना ही बनाओ, मैं ये बोलता हूँ कि आप क्राइसिस में उस चीज़ की हेल्प। मैंने जो भी चीज़ें आज सीखी है ना सीजन, मैंने अपने इमरजेंसी प्रोस्पेक्शन से सीखा है। अगर कल के डेट पे अगर मेरी वाइफ अगर तबीयत खराब है, शी इज इन लेबर, अगर वो प्रेग्नेंट है या फिर कोई भी प्रोस्पेक्शन, तो तुम कर लो ना यार। हाँ, एक वक्त का खाना अगर तुम तो खिला दोगे ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ उसकी जो खुशी होगी ना, दैट विल बी नेक्स्ट लेवल यार। ट्रू, सो दैट इज वन क्वालिटी, यू नो, गेटिंग टू लर्न दी। मत सोचो यार, अपनी मम्मी को खिला दो। बहुत बड़ी बात है। बचपन से तो मैंने अभी पिछले 1 महीने में ऐसे लोगों से मिला भाई जिनको मैगी बनानी नहीं आती, चाय बनानी नहीं आती, चावल बनाना नहीं आता। And like bro, you are, see again, I'm not telling कि just because you are a woman you should know how to cook, but at least if you are on your own, ठीक है, मान लो if your husband or if your parents are not there and you have to survive, you should know how to cook, bro. It is basic necessity. For both the gender, right? It goes for both the gender. चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जब तक घर से पैसे आ रहे तब तक तुम डोमिनोज, पिज्जा, KFC हर चीज खाओगे। True. जब वो रुकेगा, जब तुम खुद का पैसा खर्च करना शुरू करोगे। भाई मेरे को याद है, लाइक, अच्छा तू पार्ट टाइम में तू कमा भी लेगा ना सीजन, तुझे खाना बनाने नहीं आएगा तो भी तू जाके डोमिनोज खाएगा, बट उसके लिए पार्ट टाइम करना पड़ेगा ना। तुम करोगे पार्ट टाइम, लोगों को करने बोलो पार्ट टाइम। अरे मैं 9 से 6 काम करके थके आता हूँ, मैं कहाँ काम करूँगा उसके बाद, मेरे को तो आराम करना है, नेटफ्लिक्स देखना है। ब्रो मैं काम करके 8 बजे आता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, मैं डांस क्लास भी जाता हूँ, उसके बाद मैं संस्कृत भी सीखता हूँ। सेम यार ब्रो, मेरा तो यूएस शिफ्ट है। खुद को तू देख, तेरा तो रात वाला जॉब है भाई, फिर भी तो सुबह उठ के अपने जिम जा रहा है, बाकी चीजें कर रहा है। सो ओके, तो बेस्ड ऑन योर स्टोरी आई एम पुटिंग यू इन हाई वैल्यू मैन कैटेगरी, ठीक है। अब मेरी बात करते हैं। सी बेसिकली आई कीप इट वेरी शॉर्ट। 10th तक राजनांदगांव में था एंड वी वर लाइक
क्लासमेट्स इनिशियली, उसके बाद 10th के बाद मैं केरला गया था, 12th वहाँ से करी। उसके बाद 1 साल मैंने ड्रॉप लिया नीट करने के लिए। वो नीट करने के लिए जब ड्रॉप लिया तब समझ आया दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, नहीं होगा मेरे से। एंड ऑल्सो आई हैव सीन ब्रो कि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जो MBBS एग्जाम देने हम साथ में ही थे। हाँ, ट्रू। तो नीट हुआ नहीं, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। सो सी ब्रो, अकॉर्डिंग टू मी मेरा क्या जर्नी रहा, इफ़ यू आस्क मी, इंजीनियरिंग मैंने पेरेंट्स के मनी से नहीं करी है। आई हैव टेकन एजुकेशनल लोन बिकॉज 12th के बाद जो 1 साल मेरे पेरेंट्स ने मेरे नीट कोचिंग के लिए खर्च किया था ना, दैट स्टार्टेड प्रिकिंग मी कि भाई पैसे दे चुके हैं 1 साल का, अभी फिर और देंगे। तो दैट फीलिंग वॉज देयर कि अब मैं इंजीनियरिंग खुद के पैसे से करना है, भले मैं लोन लेके करूँगा, राइट। सो आई टुक लोन, 4 years कॉलेज का था। अब कॉलेज जब मैं गया था मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। मोस्ट ऑफ देम वी आर क्लूलेस आफ्टर 12th। कॉलेज में मैंने सिर्फ एक्सप्लोर किया डिफरेंट डोमेन, मार्केटिंग करी, सेल्स किया, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग करा, बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लोर करी मैंने। सो बेसिकली जब मैं फाइनल ईयर में था, मेरी पहली इंटर्नशिप वो भी कॉलेज से नहीं मिली थी। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज, इंटर्नशिप मिलना ये सब तुम कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब मैंने जो इंटर्नशिप करी थी वो मैंने खुद से ढूंढी थी, कम से कम 60-70 कॉल्स मैंने खुद किए थे कंपनीज़ में। वो इंटर्नशिप मेरी पहली थी 8,000 रुपये, राइट। एंड आई केम टू बैंगलोर, एक पीजी में रहता था, तुझे देखा होगा पीजी में। हाँ, वो था 8 या 9,000 रुपए तू पे कर रहा था और चटाई लगे के जमीन पे सो रहा था। सो दैट उसमें भी शेयर करके रह रहा था कि भाई वो 8,000 9,000 भी बहुत मैंने भाई बैंगलोर में 8,000 से तेरे को एक महीना निकालना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब ब्रो, यू हैव टू मैनेज योर फाइनेंसेस अकॉर्डिंगली। तो मैंने वहाँ से सबसे पहले मेरी लर्निंग थी कि अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं। रिमेंबर, हाँ, मैं कॉल करता था तुझे तो व्हाट यू से कि भाई मैंने ना ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया है, लंच की ज़रूरत नहीं। फिर जिम जा रहा हूँ, आके मैं प्रोटीन शेक पी लूँगा और मैं कुछ खा लूँगा, हो जाएगा। तो मतलब ये बेसिकली ना अपना लंच स्किप करता था, ये क्या करता था, अपना ब्रेकफास्ट हैवी रख के ये चल के जाता था ऑफिस। ये मेरे को पता है ये 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास ये चल के जाता था। हाँ। ताकि भाई कैब का खर्चा बहुत ज़्यादा है, मैं चल के जाऊँगा। हाँ। तो ये कार्डियो तो कर लेता था चेस्ट मेजर करके। उसके बाद फिर ये जिम भी चल के जाता था ना। ऑफिस के पास में था जिम, पास वाले जिम में जाता था। हाँ, तो इसमें ऐसा एक बना के रखा हुआ था कि यहाँ से ऑफिस है, यहाँ से जिम है, यहाँ से घर। तो ये जो भी था उसमें भी ये चल के जा रहा था, उसमें भी खाने के लिए पैसे बचा रहा था और चटाई भी सो रहा था। ये इतना तो मेरे को याद है। ट्रू। तो वो इंटर्नशिप ख़त्म हुई, तो वहाँ सबसे पहले मैंने अपने पैसे मैनेज करना सीखे, मैनेजिंग फाइनेंसेस। अगर तू आज अपने ग्रुप में या कोई भी एक 24 ईयर ओल्ड को तो 50,000 दे दे, वो एक हफ्ता उस पैसे को बचा नहीं पाएगा। ही डजंट नो कि क्या करना है, खाने पीने में उड़ा देगा। सो वन बिगेस्ट लर्निंग दैट जो बहुत अर्ली मैंने सीखी वो मैनेजिंग फाइनेंसेस। उसके बाद 8,000 की जो इंटर्नशिप थी वो ख़त्म करी। फिर आई स्टार्टेड नेटवर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, बात करते गया, धीरे से कंपनीज मैंने स्विच करी। एंड राइट नाउ आई एम क्लोजली अर्निंग अराउंड 6 digits। अब गोइंग फ्रॉम a 4 digit अर्निंग, लाइक फ्रॉम अर्निंग thousands टू अर्निंग lakhs, ये एक जर्नी होता है जो बहुत सारे लोग 3-4 साल में अचीव करते हैं, इफ़ यू नो। क्योंकि जो बंदा इंजीनियरिंग करता है वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करता है, 30 मैक्सिमम 35-40 हज़ार की नौकरी रहती है। वहाँ से वो धीरे धीरे प्रमोट होके ग्रो होके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो वन थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ इज़ कि खुद के बेसिकली खुद के आई कैन से नॉट माई पेरेंट्स मनी बट लोन लेके मैंने एजुकेशन करी। 2 years 2 साल हो रहे हैं मेरे को अभी पढ़ाई ख़त्म की, एंड दैट लोन, एजुकेशनल लोन इज़ अबाउट टू एंड एंड आई एम प्रिटी मच स्टेबल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टेबल हूँ बिकॉज आई एम अर्निंग वेल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी स्टेबिलिटी तब तक अचीव नहीं होगी जब तक कि आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई नेम। इट कैन बी अ फ्लैट, इट कैन बी अ व्हीकल और एनीथिंग। क्योंकि अब मान लो मैं 2 साल बाद जब मैं खुद की एक बाइक खरीदता हूँ एग्जाम्पल, दैट टाइम आई कैन से कि हाँ आई एम मैच्योर्ड इनफ कि मैं बड़े डिसीजंस ले पा रहा हूँ, एंड आई एम स्टेबल इन लाइफ कि हाँ मैं मतलब इतनी कॉस्टली चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। एंड देन आई कैन से अगर कोई पार्टनर मेरे साथ आना भी चाह रहा है, आई कैन हैप्पीली मैनेज द फाइनेंसेस, राइट। बट अगेन इन टूडेज वर्ल्ड इफ़ वन पर्सन इज अर्निंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सो दैट इज़ वेरी शॉर्ट स्टोरी। मैंने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं अपने करियर में, बट आज थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक सिचुएशन में। तूने बहुत अच्छा, मेरे को एक चीज़ तेरी बहुत अच्छी लगती है सुजन, क्योंकि तूने मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बैंगलोर में जॉब करते हैं और एक ही कंपनी में बैठे रहते हैं प्रमोशन पर।
या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते वो जीरो से स्टार्ट करने का। हाँ जो मैंने अपनी स्टोरी में बताई, जो तूने बताई, वो सेम है। बस तेरे अंदर वो करेज था कि तेरे अंदर ये हिम्मत थी कि मैं जीरो से भी शुरू करने की काबिलियत रखता हूँ, तो तूने मल्टीपल कंपनी स्विच की, तो आज तू इतने अच्छी जगह पे आया बिकॉज ऑफ यू, राइट। उसमें देख यार, मैं ये मानता हूँ कि पेरेंट्स से हमें हर चीज़ मिलती है, चाहे वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो या फिर इवन वो इमोशनल भी अटैचमेंट भी बहुत है। हम बोलते हैं कि हम अपने माँ बाप से कुछ नहीं लेते, बट हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। वो सिर्फ पैसे, देख यार, वो सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अगर तू इमोशनल सपोर्ट भी ले रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ तू उनसे ले ही रहा है। एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि तूने अपना एजुकेशन पैसे घर से नहीं लिए, क्योंकि तुझे भी पता है कि यार तू घर वालों को उतना टेंशन नहीं देना चाहता, क्योंकि तुझे पता है रियलिटी कि तू पैसे देने के लिए वो तुझे दे देंगे, बट उनकी स्थिति कितनी खराब होगी ये तुझे बैकग्राउंड तेरे को पता है, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। राइट। और मुझे ये लगता है कि यार ये चीज़ ना हर किसी को करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने घर से पैसे लेने का, लेकिन आप धीरे धीरे कम करो। एक साथ कोई भी नहीं कर सकता, ये मैं भी जानता हूँ, आई ऑल्सो यूज्ड टू टेक मनी। तो आप धीरे धीरे जब कम करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा पैसे की वैल्यू। मैं अगर आपको पैसे की वैल्यू जानना है मेरे भाई, तो आप धीरे धीरे अपने घर से जब पैसे मांगने कम करोगे, तो आपको पता चलेगी कि पैसे की वैल्यू क्या है। तब आप सोचोगे, तब आपका दिमाग चलेगा कि इसको इन्वेस्ट किया जाए कि इसको उड़ा दें। फिर एक समय के बाद ना, जब आप वो चीज़ करते रहोगे ना सचिन, आज मेरे को ना एक चीज़ लगता है, अब मेरे लिए पैसा सिर्फ एक डिजिट हो गया, एक नंबर है बस मेरे लिए। मैं फोन पे या कोई भी अगर डिजिटल ऐप यूज करता हूँ तो मैं जब पेमेंट करता हूँ, मेरे नंबर है बस। हाँ ट्रू, वेरी ट्रू। मेरे लिटरली अब वो पैसा नहीं लगता यार, अब मेरे को वो लगता है कि वो एक नंबर है यार, 20,000 20,000 यही हो गया, अब वो नंबर हो गया। मेरे को पता है कि मेरा पैसा सिंक जगह, तो मेरे को अब वो इतना टेंशन ही नहीं है, मेरे लिए नंबर है बस। तो वो चीज़ तब तक आपको नहीं आएगी जब तक आप अपने आप से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ट्रू, अगेन सिर्फ अपब्रिंगिंग के लिए यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने घर वालों से पैसे लेना छोड़ दो, ये दिखाने के लिए कि मैं वो हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपना सेल्फ मेड हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्या इंडिपेंडेंट है भाई, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर का राशन खा रहा है। सो बेसिकली आई ऑल्सो हैव वर्क फ्रॉम होम, बट द रीजन वाई आई एम नॉट गोइंग होम इज बिकॉज मेरे को फिर से वो डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। राइट नाउ एज आई सेड, अभी तेरे को पता है कि अगर तेरे को एक रीजन डिपेंडेंसी होता है, एक रीजन ये होता है कि जब तूने लाइफस्टाइल एक बैंगलोर का देखा है, तुझे वो सराउंडिंग मिला ग्रो करने का, तो राजनांदगांव में या कोई भी स्टेट में जाएगा तो तुझे फिर स्टार्ट करना होगा। तुझे वो मेंटालिटी और वो बनाने में अब तो ध्यान नहीं देना चाहता, तो वो सर्कल अब नहीं बनाना चाहता, तुझे अब उस चीज में दिमाग नहीं लगाना ध्यान, इसलिए तू चाहता है कि जहाँ हूँ मैं वहीं चला जाऊँ। नो, थोड़ा और अच्छे से बोले तो द काइंड ऑफ पीपल आई एम नेटवर्किंग विद इन बैंगलोर कैन नॉट बी फाउंड इन इट इज अ फैक्ट। यहाँ दो चीजें हैं, ये भी है ट्रू, ये भी है। बट अगेन ब्रो, ऑन द अदर हैंड, अगर मैं चाहूँ वर्क फ्रॉम होम करके आई कैन सेव माय एंटायर मनी, बट अगेन आई डोंट वांट दैट टू हैपन। एंड लोग कोई पैसा ही जरूरी नहीं है सीजन, खुशी भी तो मैटर करता है, नहीं तो वो काम नहीं जहर लगने लगता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। पर्सनल रीजंस हो सकते हैं कुछ हाँ, मुझे भी ये लगता है कि यार देखो, बिकॉज सी आई टेल यू ब्रो, रीजन की मेरा ऐसा है ना, अगर इसमें ना एक चीज़ मैं ये, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ ये लगता है कि आपको बहुत सारे लोग हैं सीजन जो सेक्रीफाइस नहीं करना। देख, अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं अगर एग्रीकल्चर का काम करूँ तो मेरे को गाँव में काम करना पड़ रहा है मेरे भाई। मैं गाँव में ना इंटरनेट है, 2 लाख ना नेटवर्क है। देख, इंटरनेट है भी तो मुझे ये है कि यार मेरे को करना तो वही है। मुझे वहाँ लाइफस्टाइल नहीं मिलने वाला, ना मुझे ग्रुप मिलने वाला, ना मुझे पार्टी करने आता है, ना मैं तो मैंने आज तक क्लबिंग भी नहीं की, ना मैंने इसलिए बैंगलोर बुला रहा हूँ तेरे को, उसके लिए नहीं यार। तो मुझे ये लगता है यार सचिन कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो 25-30 हज़ार की नौकरी करते हैं और उनको पुणे बैंगलोर में, और वो बोलते हैं यार लाइफस्टाइल है यार, मैं गाँव में नहीं रहूँगा, या मैं गाँव। उनके लिए लाइफस्टाइल क्या है ब्रो? क्या लाइफस्टाइल है ब्रो? पैसा है तो लाइफस्टाइल है। नहीं, वहाँ पे डिफरेंस है ना। अब मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, द काइंड ऑफ पीपल आई एम नेटवर्किंग विद, जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, जो चेंजेस मेरे को सीखने मिल रही है। ब्रो व्हाई यू आर डिपेंडिंग, मतलब देख, तेरा काम ये है कि तेरे को फिजिकल प्रेजेंस वहाँ देना बहुत जरूरी है, तब तू पैसे कमा पाएगा, तब तू करियर स्विच कर पाएगा। तेरा जॉनर बहुत अलग है, ठीक है। मैं अगर एक चीज बोलूँ सीजन की, तू 25, तेरे को आगे चल के कमाना नहीं है ज्यादा, तू उसमें सेटअप हो, नॉट मनी माइंडेड ब्रो। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर देख, जैसे कि अगर मैं 25,000, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ यार, छोड़, मैं अगर 25,000 की नौकरी कर रहा हूँ पूरी,
मेरे को पता है कि इतने में मैं फैमिली रन नहीं कर सकता। उसके बाद भी मैं पुणे में हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं यार, लाइफस्टाइल, पार्टी, दारू, उसके बाद इंडिपेंडेंटनेस, उसके बाद अकेले रहना, अपने डिसीजन पे एंजॉय करना, तो ये ना मैं अपने आप को झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, सो मैं वही बोल रहा हूँ, अपने घर जाके जब तक इंक्रीमेंट नहीं आएगा मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा। जो तूने किया, हाँ तू वर्क फ्रॉम होम इसलिए आया था क्योंकि तेरे को पता था कि मेरे पैसे जब बढ़ेंगे, जब मैं अफोर्ड कर सकूंगा, तब तू वापस गया। ये डिपेंडेंसी वाली बात नहीं है ब्रो, ये रियलिटी चेक है। हाँ, तो बेसिकली करेक्ट कर रहा था। हाँ, तो जो बोला सेम चीज़ मैं भी बोल रहा था कि वो 25,000 में जो उनका जो वो वहाँ रहना चाह रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि पार्टी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और क्लबिंग पबिंग वाला जो एनवायरनमेंट है, लाइंग टू देमसेल्फ, ट्रू। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं इसलिए क्यों नहीं जा पाता, इज बिकॉज द काइंड ऑफ लर्निंग पीपल आई इंटरेक्ट विथ, और जैसे कि तू बेसिकली बोल रहा था कि एंड अफोर्डिंग दिस ऑल दिस थिंग्स टेकिंग टुगेदर। हाँ, बट तुझे बोला, तूने जो अभी बोला कि मेरे को बाइक लेनी है, तो बाइक लेनी है तो वो भाई 25,000 की नौकरी से तो नहीं आएगी BMW भाई। shouldn't have to say that। लाख 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए ही चाहिए। तो फिर तू वहाँ इसलिए गया क्योंकि अब तुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ यार, अब मैं एक फैमिली रेस कर लूंगा कुछ समय बाद, और मुझे अगर यहीं रहना है तो मुझे बेस क्रिएट करना होगा, चाहे वो अपार्टमेंट लेना, चाहे मुझे वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना, चाहे वो मुझे आगे चल के अगर यहाँ सेटल होना है, इस सिटी में सेटल होना है, तो मुझे हर एक चीज़ समझनी होगी। अगर कल की डेट पे पुलिस केस हुआ तो मुझे कहाँ जाना है, कल की डेट पे अगर कुछ हुआ तो मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे तेरा कोई बैकअप नहीं है। तो इसलिए तू बैंगलोर में ब्रो। हाँ, दैट इज द फैक्ट। करेक्ट। मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई पैसा मत बताओ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को काम करने मिल गया, मैं अब पुणे में रहना है मेरे को बैंगलोर। भाई तू ये बता कि तू सरवाइव कर सकता है खुद के पैसे पे, और खुद के पैसे पे ही नहीं यार, तू आगे चल के फैमिली रेस करने की काबिलियत रखता है, बस वो सीधी सीधी बात है। ट्रू। अपने लिए तो कोई भी कर लेगा यार। मैं भाई मैं भी 1 महीना 1.5 महीना पास्ता खा के या मैगी खा के जिंदा रहता। भाई खुद को मार रहे हो तुम तो, फिर गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? इफ़ यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी भाई, लाइक आजकल ना मेरे को भी ऐसा भी लगने लगा है भाई, हम जो खा रहे हैं सब केमिकल खा रहे हैं भाई। पता नहीं, मैं दिन ब दिन इतना कॉन्शियस होता जा रहा हूँ, पता है, मैं ना मैगी खाने का मन करता है, ना बाहर से खाना ऑर्डर करने का मन करता है। एक ही चीज़ लगता है भाई, बाहर से खाना मंगा ली मतलब बीमारी होनी है। अब पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब 1-2 महीने से ऐसा इंडिया में ना लड़कों के अंदर ना एक बहुत बड़ा टैबू है खाना बनाने का, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ना राजा बाबा टाइप का हुई है, पता है, राजा लड़का। मैं मजे से खाना बनाता हूँ भाई। मम्मी अरे बेटा तू सोना, तू मत कर ये सब। हम कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखा ब्रो, क्योंकि हमने वो क्राइसिस नहीं देखा। तेरे लिए और मेरे लिए कुकिंग इज लाइक अ स्ट्रेस बस्टर कि हाँ भाई मस्त आराम से कुक किए। हमारे लिए ना हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई, बनाना है भाई। मैं जब डाइट किया, मैंने अपनी जब क्रिएट की, तो भाई मेरे को झक मार के अपना डाइट बनाना, सोयाबीन। इतना टेंशन नहीं यार अपने घर वालों को। भाई मैं वो सोयाबीन का स्नैप, ये मेरे को रोज स्नैप भेजता था, पता है, सुबह शाम दोपहर को सोयाबीन का एक बाउल ऐसे दिखता था। मैं भाई देख के परेशान हो गया था भाई यार। मैंने 3 महीने खाए, बाप रे। 3 महीने सोयाबीन, मैं सोच भी नहीं सकता भाई कि मैं 3 महीने 3 टाइम सोयाबीन खाऊं बस। अरे एक टाइम के बाद तो मैंने जब ना डाइट तोड़ा, उसके बाद मैं आइसक्रीम खा रहा था तो मैं फ्लेवर भूल गया था आइसक्रीम का, पता है। मेरे ही साथ गया था तू। हाँ मेरे को, अरे कौन सा फ्लेवर है पूछा थे? अरे बाप रे, मेरे को याद आया उस दिन मैं भूल ही गया था। जब डाइट मेरा जब डाइट ब्रेक हुआ, कितना खाए थे उस दिन, अरे नहीं हो रहा था। मैं ये खाएंगे वो खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, लिटरली भाई रात भर घूम के खाए, घूम के खाए, जो रास्ते में दिखा। सीधे चाट, सीधे फल्ली, सीधे आइसक्रीम, ये वो जो रास्ते में दिखा सब जान रहे। अरे भाई साहब ब्रो, बट मैं एक चीज़ बोलूँ, जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी, राइट, स्पेसिफिकली अबाउट यू, जब वो तेरा स्ट्रगल फेस चल रहा था ना, पीपल स्पेसिफिकली गर्ल्स, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। अरे भाई नीलाक्ष कौन है, नीलाक्ष कैसा है नीलाक्ष, नो एंगेजमेंट एज इन। मैंने तेरे को क्या बोला था जिस जब मैंने डाइट शुरू किया था, मैंने तेरे को बोला था तू 3 महीने रुक से, उसके बाद मैं तेरे को फ्लैट दिखाता हूँ। ट्रू, हाँ, दैट आई एक्चुअली सॉ, राइट, बिकॉज जब लाइक ही वाज नॉट दैट बिल्ट, जब ये अपना डाइटिंग फेस में था, तो अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू इग्नोर हिम। जो दोस्त थे लाइक स्पेसिफिकली द गर्ल्स साइड आई एम टॉकिंग अबाउट, जो दोस्त थे, when he stopped, so he had a difficult phase, तेरा एक difficult phase चल रहा था, I think it was breakup times only। उस टाइम जितने भी girls who follow him or whatever, they used to follow him, maybe अभी follow करते क्या नहीं पता, they used to ignore him कि अरे भाई इसका तो हो गया, एक करियर का फेस था, वो फेस तो ख़त्म हो गया, बहुत फेम मिल गया, अब हो गया ख़त्म, फिनिश्ड। देन फिर 3 महीना जो डाइटिंग करी ना ब्रो, इसके बाद जो इसने पहली फ़ोटो डाली थी, कितने DM थे?
15-16 भाई इट वाज लिटरली फ्लड था भाई, वो 15 से 20 डीएम कमेंट्स, अरे बाप रे। तो नीलाक्ष मेरा क्वेश्चन ये है, दैट पोस्ट वाज लाइक द नीलाक्ष देशमुख हैज हाँ, बैक। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बीइंग अ हाई वैल्यू मैन व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी दैट वी शुड हैव, कि देखो उस टाइम तो नहीं थे, अब वो आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, सीधा मुंह पे बोलूं कि ब्रो मेरा ये मानना है कि ना जो हमारा इतना जो हमने जितनी भी बात की है, हाँ उसका सिर्फ एक एजेंडा है। हाँ मैं ये बोलूंगा कि आप जब तक हाई वैल्यू मैन की कैटेगरी में बने रहोगे तब तक आप इस दुनिया में राज करते रहोगे। ट्रू। मैं ये बोलता हूँ कि आप किसी पे डिपेंड होने की काबिलियत मत रखो। जिस दिन आप मेरे साथ वो आप प्रॉब्लम अपने आप अभी पे- भी है, आई आप कैन अपने से। आप पे काम करना बंद कर दोगे। मैं डिपेंड सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी लड़की को बुरा नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लड़कों की गलती है कि वो डिपेंड होने लगते हैं। नहीं, रिलेशनशिप में आओ ना यार, बिल्कुल आओ, लेकिन आप डिपेंड मत होना यार, उसके ऊपर बोझ मत। ट्रू, आई कुड रिलेट, आई विल कम्प्लीटली एग्री टू दैट। लाइक मेरा ऐसा सीन है ब्रो, तेरे को पता होगा जब मेरा वो लो फेस चल रहा था भाई, मैं बैंगलोर में अकेले था, है ना, तेरे को पता होगा मैं डेली सुबह शाम तेरे को कॉल करता था कि भाई नहीं हो रहा है भाई, एकदम अकेलापन लग रहा है भाई, ये वो। बट आज हाँ, टुडे आई हैव इवॉल्व्ड अ लिटिल बिट, बट तू आज भी बोलता है कि भाई तू डिपेंडेंट है यार, इसलिए तू नहीं कर पा रहा है चीज़ें, तू बोलता है अभी भी। सो अभी जितना मैंने अडेप्ट किया है बीइंग इंडिपेंडेंट, जो बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आज के दिन मेरे साथ केविन है, राइट, केविन तू जानता है उसको, राइट, तो वो मैं और वो एक साथ जिम जाते हैं। बट अभी मेरा ऐसा, पहले ऐसा था कि वो नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा यार, अकेले क्या करूंगा जिम जाके। बट मेरा अभी ऐसा हो गया है कि भाई वो नहीं जा रहा है। मेरे को याद है जब लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी, वो रात को तू रोता था कि यार मेरे को अकेला लग रहा है मेरे पास बात करने के लिए। नाउ यू हैव वर्क टू डू, यू हैव योर जॉब, और उसके बाद जब तू सुबह उठता है तू बोलता है कि भाई अब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, मैं पॉडकास्ट शुरू करूंगा। मुझे याद है तूने बोला था कि अपन कुछ कुछ करेंगे, याद है तुझे, हमने वो भी डिस्कस किया कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट, हाँ, तो आप क्रिएटिव रहो ना, मैं वही बोल रहा हूँ। आप जब वर्क करते रहोगे आपको बुरा लगेगा ही नहीं, आपके पास समय ही नहीं है कि आप किसी से बट भाई दैट वाज अ वेरी डार्क फेस, एब्सोल्युटली भाई, मतलब मैं सुबह शाम रोता था भाई, आई वाज लाइक लिटरली मेस्ड अप, इतना परेशान। बट हाँ, तब उसने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ कम्प्लीटली, बिजी रख अपने आप को। मैंने डाइट किया यार, मैंने जब डाइट किया मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने कुछ भाई मैं भी बहुत कुछ किया हूँ यार, मैं भी बहुत बुरा लगता था यार। इवन आई आल्सो यूज्ड टू क्राई एंड लाइक सी ब्रो, देयर इज एक, सॉरी टू इंटरप्ट, यू नो नाउअडेज देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्फा मेल, राइट? इफ यू आर एन अल्फा मेल यू कांट क्राई, यू कांट डू शिट। भाई इंसान है, रोता है, इवन इफ इट्स अ गाय ही विल क्राई। इफ ही इज क्राइंग बिकॉज ऑफ हिज low face in life, I won't say that he's not a alpha male or he's not कि you know भाई बंदा नहीं आ रहा तो रो दिया यार, ये तो ये हो गया। मैं ये बोलूँ कि ना, रोना है ना तो अकेले में रो ले, मन हल्का कर ले, किसी को मत बता, क्योंकि किसी से फर्क ही नहीं पड़ता भाई। वो 2 मिनट का सिंपैथी देने के अलावा मतलब नहीं है। रियलाइज्ड इट वेरी लेट, बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ है मेरे को। ब्रो देख, मैंने तुझे जज नहीं किया कभी, मैंने उल्टा सपोर्ट किया, बट हर कोई वैसा नहीं है। नहीं, हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। लगता है कि आप सामने वाले को अपनी वीकनेस बता रहे हो और कल के दिन पे वही वो वेपन यूज करेगा तेरे ऊपर, जब तू अगेंस्ट यू। हाँ एब्सोल्युटली ब्रो, वो आगे में तेरे को जताने लगेगा, तेरे को गिनाने लगेगा भाई। नो वन वांट्स टू सी यू ग्रो, बस ये मेंटालिटी रखो कि नो वन वांट्स टू सी यू ग्रो, राइट? खुद के लिए काम करो, हसल करो, सुबह से शाम तक का एक रूटीन बना लो। कल के डेट पे हो सकता है कि हम दोनों भी अगर एक दूसरे से ज्यादा ग्रो करे, तू मेरे से ज्यादा ग्रो कर ले, तो मुझे भी मन में आएगा यार सचिन उस फेज में था, अब मुझसे फोन में बात नहीं करता, अब मुझे भी बुरा लगा, लेकिन वो मुझे तब तक लगेगा जब तक मैं कुछ और ना करते रहूं। अगर मैं भी ग्रो करता रहूंगा तो मुझे वो बुरा ही नहीं लगेगा। That's why I always say learn and grow together, भाई एक दूसरे से सीखो। That is the difference between competition and collaboration, right? बट इंडिया में वही नहीं है ना। इंडिया में ऐसा है कि लोग वेट करेंगे कि कैसे इसको सीढ़ी से नीचे गिराया जाए, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हाँ भाई अच्छा कर रहा है भाई, तू और कर। धार्मिक बन जाओ, थोड़ा सा धार्मिक बनो, चीजें पढ़ो, उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद करेंगे। इंडिया में संस्कृत का लैंग्वेज था, ठीक है? इंडिया का सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना लैंग्वेज संस्कृत, ठीक है? संस्कृत हमारे इंडिया की धरोहर है, यहाँ ही से स्टार्ट हुई थी संस्कृत। कितने लोगों को संस्कृत बोलने आता है? मैंने तो भाई 10th में सीखी थी, तो अब नाम किम मम नाम। तो भाई मैं बताऊँ, मैं संस्कृत अब ना अपने एक तरीके से मैं पैशन बना लिया, या तू हॉबी बोल ले, जो भी बोल ले, वंडरफुल। मुझे मजा आ रहा है। क्यों भाई? लोगों को ना मजाक लग रहा होगा, एक श्लोक सुना दे भाई। तू बहुत अच्छा मेरे को सुनाता है तू, बट एक श्लोक संस्कृत में सुना भाई। देख एक थोड़ा सिचुएशन है, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद ये पॉडकास्ट आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
तो बेसिकली मैं एक सिचुएशन पे, मेरे को ना सिचुएशन वाले श्लोक्स बहुत पसंद है। तो जो अपन लाइफ से रिलेट कर पाए, जो अपने साथ अभी हो रहा हाँ, हो। लाइफ से रिलेट कर पाए या वो जो मीनिंगफुल हो, मैं वैसे श्लोक से आता हूँ। मैं भी पंडित नहीं हूँ, मैंने भी बहुत पाप किए तो ये है कि महाभारत के इस युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को रण क्षेत्र में देखा तो उनका मन विचलित हो उठा और उनका गांडीव उनके हाथ से गिरने लगा। वे कहने लगे कि अपने ही सगे संबंधियों भाइयों को मारकर मैं इस महापाप का भागी नहीं बनना चाहता। इससे तो अच्छा है मैं युद्ध में अपने प्राण त्याग दूं या फिर इस युद्ध का परित्याग कर दूं। अर्जुन की इस स्थिति को देख श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। गीता के उस ज्ञान में एक श्लोक यह भी था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुक्तथानार्थ धर्मस्य तदात्मानं सृजामयं परित्रणाय साधूनां विनाशचाह दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। ओ भाई साहब, तो इसका मीनिंग ये है बेसिकली कि जब जब धर्म की, श्री कृष्ण में कहते हैं कि जब जब तुम्हारा जो धर्म है वो तुम्हारे रिश्तेदारों से बढ़कर है, हर चीज़ से बढ़कर है, क्योंकि तुम्हारा धर्म ये कहता है कि सच और गलत में तुम फर्क समझो, वो कोई भी हो। और उसके बाद जब जब पाप बढ़ेगा तब तब मैं इस धरती पे वापस धर्म की स्थापना करूँगा और वापस इस जगह को स्वच्छ करूँगा। तो ये सब लाइफ लेसन है ब्रो, क्योंकि आज हम बोलते हैं ना कि हमारे रिलेटिव्स हमसे जलते हैं, ये आज की बात नहीं है, ये कब से चले सदियों से है भाई, बहुत पहले से है। बाद में मिला है भाई, तुझे रियलिटी चेक बाद में मिला। You realized it very late. तुम अपना काम करो ना यार। अब ये सब मैंने कोई रटा तो नहीं है, मुझे एक तरीके से पैशन था, मैं अब ये सब रट के क्या करूंगा यार, मेरा तो कोई काम भी नहीं आने वाला। ब्रो बेसिकली यू आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग, तू उससे रिलेट कर पा रहा है, मन को शांति मिल रही है यार, मुझे अच्छा लग रहा है। पीस या सो अगेन एक पॉडकास्ट, अगला पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी पे करते हैं कि what is your spiritual routine that you follow and I can talk about my spiritual routine that I can follow। ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। हाँ, वीडियो और लंबी हो जाएगी। सो सी आई डोंट नो कि आपको कुछ वैल्यूएबल मिला नहीं मिला, एब्सोल्युटली मिला होगा, बट अगेन इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। हर हफ्ते 1-2 वीडियो तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज वी बोथ हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, राइट। तो एक वीडियो हफ्ते का एब्सोल्युटली वी विल ट्राई टू पुट इन एंड यू कैन एक्सपेक्ट वीडियोज़ ड्रॉपिंग इन एवरी मंडे। फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो विल कंटिन्यू। राइट, एंड कमेंट्स पे यू कैन पुट इन कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स वुड यू लाइक टू हैव। ग्रूमिंग पे चाहिए, फिटनेस पे चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे चाहिए, 1-2 टॉपिक्स तू बता दे जो तेरे दिमाग में हो। कुकिंग, बेसिकली कुकिंग हो गया, फोटोशूट्स हो गया, फैशन इंडस्ट्री हो गया, या फिर जिमिंग से रिलेटेड हो गया, स्टार्टअप। हाँ, यू कैन बेसिकली गो फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, एंड बेसिकली हम दोनों का प्रोस्पेक्शन बहुत अलग है। वो डिजिटल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे वो इन्वेस्ट करता है, मैं सॉलिड फॉर्मेट पे इन्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, व्हाटएवर। So we both have different experience. Right. What we are doing right now, you can also ask. We don't have a shame. We both believe in collaboration, not in competition. Also, if you want to be part of podcast like this, आपको भी बैठ के conversation करनी है हमारे साथ, just reach out to Nilaksh or me. Instagram link is there in the description. Click करके किसी को भी मैसेज कर दो and we can do that. And obviously इतने बड़े लोग नहीं है, but हाँ मज़े से बात कर सकते हैं. We can get to learn from each other. So these things we can do. Just be like a familiar thing. We are family. We are not like कि हम ज्ञान देने आए हैं. We are like कि we are just interacting. हम जब फोन पे बात करते हैं, हम उसे एक तरीके से वीडियो पे शूट करते हैं बाहर से. True. And apart from that, ultimately see we are like I'm 24, Nilaksh is also 24, and see we got to learn all these things by ourselves. Finance को ले लो या कोई भी real life things हो गई, income tax file करना हो गया, और छोटी छोटी चीज़ें होती है जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीखनी, राइट। लाइक ही वॉज टेलिंग, पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में, कुकिंग, यू नो, बेसिक थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स वी लर्न बाय आवरसेल्व्स एंड वी वांट एवरी वन ऑफ यू टू लर्न दिस थिंग्स थ्रू अस. इफ इट इज़ हैपनिंग, वंडरफुल, वेल नॉट. सो जस्ट सपोर्ट करना, होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट नेक्स्ट मंडे. टॉपिक कौन सा? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल रूटीन दैट वी फॉलो. यार मैं ये बोलूँगा कि इसको ना कमेंट में डिसाइड करने दो. चलो ठीक है, वंडरफुल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पता चलेगा कि लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, पता चला हम बोर ही कर रहे हैं बस. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, and let's learn and grow each other. For inviting. Thanks a lot, man. We'll keep doing this regularly, and signing off. Thanks a lot for joining in, man.
बाय 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 बाय।